وہ ہم بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ریفیوجیز کی بات کر لیں، جو افغان ریفیوجیز تھے، وہ معاملہ بھی بڑا اہم تھا اس سلسلے میں 2019 فیبروری میں یہاں پر UNHCR فلپو گرانڈی بھی آئے، UN سیکرٹری جنرل بھی آئے، اور یہ پہلی بار ہوا کہ وہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان آئے اور انہوں نے افغان ریفیوجیز کی بات کی. وہ معاملہ جو ابھی تک جس کو اتنی کنسیڈریشن حاصل نہیں تھی، جس پر کام نہیں ہو رہا تھا، وہ اجاگر کیا گیا. پاکستان کی جو معاونت ہے، پاکستان نے جو بھی کیا افغانستان میں امن کے لیے، وہ قابل داد اور قابل تحسین ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو ہم چلیں گے. میں تھوڑا سا ذرا ذکر کر دوں کہ احتشام الدین جو ہیں یہ کام کرتے ہیں پاکستانی جو پھنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 4-5 لاکھ پاکستانی جب 71 کی جنگ ہوئی تھی وہ بنگلہ دیش میں رہ گئے تھے اور وہ کیمپوں میں رہتے ہیں. وہ کسی ملک کے شہری نہیں ہے. پاکستان ان کو واپس نہیں لے سکا اور بنگلہ دیش ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو کیمپوں میں رکھا گیا. میں 2-3 دفعہ وزٹ کر چکا ہوں ان کیمپوں کو، اور آپ یقین کرو کہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان بیچارے لوگوں کی. ایک ایک کمرے میں 2-2 خاندان رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں. ایک چارپائی جس کے اوپر ایک خاندان سوتا ہے، نیچے اس کے دوسرا خاندان سوتا ہے. تنگ گلیاں. صاحب 116 کیمپس ہیں 13 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا 1 میٹر کا فاصلہ ہے صرف ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کے بیچ میں، یا کیمپس ہی کیمپس ہیں اور ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جانے کے لیے صرف اتنا سا فاصلہ ہے. اور یہ معاملہ 1947 سے شروع ہوا جب پاکستان اسٹیبلش ہوا، اور جو ایسٹ اور وہ جو بہار سے لوگ تھے، وہ بہت سارے وہاں مطلب انڈیا سے لوگوں کو جن کو قریب پڑا تھا وہ ایسٹ پاکستان موو کر گئے. لیکن 71 میں وہ وہاں پر ان کو وہ رائٹس نہیں مل سکے، وہ رہنے کے رائٹس، بنیادی چیزیں ان کو وہاں نہیں مل سکی. وہ ابھی تک اس سے محروم ہے اور بہاری انہیں کہا جاتا ہے. میں تو وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے نا کہ آپ جیسے ان کے کیمپوں میں داخل ہو آپ کو بڑا سا پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا. اچھا آپ کو باہر بنگلہ دیش میں لوگ بنگالی بولتے ہیں، آپ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں خالصتاً اردو بولی جاتی ہے. بڑی خوبصورت. خیر شکاگو میں جو احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی آرگنائزیشن نے بڑا کام کیا وہاں پہ ان کیمپوں میں بہتر سہولیات کے لیے، ان کو اس کے لیے کہ ان کو رائٹس مل جائیں، اور کچھ نہیں تو بنگلہ دیش میں ہی ان کو نیشنلٹی مل جائے. ان کو کارڈز دیے گئے ہیں لیکن وہ کارڈز صرف اس حد تک ہے کہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. ابھی کی صورتحال یہ ہے، میں صرف چھوٹا سا بتا دوں، ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ میئر نے وہاں پہ ڈھاکہ کی کہا کہ ان کیمپوں کو توڑ دیا جائے. اگر ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو احتشام صاحب کو لیں. بالکل احتشام صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اور بہت سا کام آپ نے کیا ہے، اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے. آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بہاری مسلمز ہیں کیا بنے گا ان کا ایشو کب سامنے آئے گا؟ روہنگیا ریفیوجیز کے بارے تو عالمی سطح پر بات کی جاتی ہے، لیکن یہ نیگلیکٹڈ ہیں، ان کے اوپر کب کام ہوگا؟ ان کو ان کے رائٹس کب ملیں گے؟ جی یہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ان کو یہ رائٹس کب ملیں گے کہ یہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے پاکستان یا بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی کونے میں جا کے رہیں گے اور ان کو بنیادی سہولتیں دستیاب ہوں گی. اصل میں ان کا دیکھیے ان کے مسائل کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہ ہیں کون لوگ. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ 1947 میں جو ہندوستان کے جو اقلیتی صوبے تھے مسلمانوں کے، ان میں سے جس میں سے بہار، یو پی، سی پی، لکھنؤ، آسام، تریپورہ، یہ تمام کے تمام لوگ وہاں گئے تھے، جو کہ مشرقی پاکستان قریب تھا وہاں سے، چونکہ بہار اور بنگال قریب تھا تو وہاں وہ منتقل ہو گئے تھے. اور وہ قائد اعظم کی اپیل پہ وہاں پہ آپٹ کیا تھا انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے کہ ریلوے کا نظام چلانے کے لیے اور دوسرے کارخانے چلانے کے لیے قائد اعظم کو لوگ چاہیے تھے مشرقی پاکستان میں اسکلڈ، اور اس کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس ملک کا اس حصے کا نظام سنبھالا، نظام حکومت چلایا. اور جب 25 سال کے اندر ہی اندر جب علیحدگی کی تحریک چلی تو ظاہر ہے آئیڈیالوجیکلی وہ علیحدگی کی تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے متحدہ پاکستان کی حمایت کی. یہی ان کا جرم تھا کہ جب آرمی آپریشن ہوا
तो ढाका में तो आर्मी ऑपरेशन हुआ, लेकिन दूसरे इलाकों में जैसे खुलना में, सैदपुर में, संताहार में, मेमन सिंह में, यहाँ पे जो रिवॉल्ट किया है ईपीआर ने, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने, उन्होंने कत्लेआम करना शुरू किया उन लोगों का जो पाकिस्तान के हामी थे और जिन्होंने अलहदगी का साथ नहीं दिया। ये वही लोग हैं कि जब वहाँ पे ढाका फॉल हो गया और उनका आज़ाद बांग्लादेश बन गया, तो उनको उनके घरों से निकाल के मैदानों में डाल दिया गया, जहाँ पे रेड क्रॉस ने, आलमी रेड क्रॉस कमेटी ने झुग्गियाँ बना दी और उनसे सर्वे किया कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, पाकिस्तान जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहेंगे। उनके वो लोग 5,73,000 बच गए थे कत्लेआम के बाद। उन सब ने सर्वे में ऑप्ट किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। इरशाद साहब एक लम्हे के लिए इजाजत दीजिए, वो उन्हीं कैंपों में पड़े हुए हैं। जी इरशाद साहब एक इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इरशाद साहब की बात जारी रहेगी। बताएंगे हम कि इन बिहारियों का अब हाल क्या है और अगर कैंप टूट जाते हैं तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, पब्लिक जानने के लिए साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम बात कर रहे थे बिहारियों की और एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिला ताखीर एहतशाम साहब के पास ही चलते हैं। एहतशाम साहब बताइएगा, पाकिस्तान में क्यों इस पर बात नहीं हो रही? हुकूमतें तब्दील होती जा रही हैं लेकिन इस मौजू पर बात नहीं हो रही, क्या वजह है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही बनती है, इसलिए कि जब 71 में पाक भारत जंग हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ से उन गैर बंगालियों को, जिनको हम बिहारी भी कहते हैं, उनके नौजवानों को हायर किया था और उनको लेकर एक बनाई थी उन्होंने वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान राइफल जो रिवॉल्ट कर गई थी, उसको इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स के नाम से उन बच्चों को वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई 1 हफ्ता 10 दिन, और उनको भारत के सरहद पे भेज दिया गया कि उनसे आपको जंग लड़नी है। अच्छा देखिए, 73 में एक 6 फरीकी मुआहदा हुआ था दिल्ली में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के माबैन, जिसके तहत जो जनरल्स पे मुकदमा चलाया जाना था 195 जनरल्स पे, उस पे ये राज़ी हो गए तीनों ममालिक के उन पे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और वो पाकिस्तान चले जाएंगे। बंगाली जो मगरबी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में रह गए थे उनको बांग्लादेश भेजना था, वो चले गए। जो नॉन बंगालीज थे उनको पाकिस्तान आना था बांग्लादेश से, क्योंकि उन्होंने ऑप्ट किया था। तो उनको उनमें से कुछ लोग 1,73,000 तो आ गए, बाकी वहीं पे वहीं रह गए, इसलिए कि वहाँ पे एयरलाइन अक़वाम मुत्तहिदा की बंद हो गई और वो वहाँ रह गए। फिर 1988 में पाकिस्तान और राब्ता आलम इस्लामी के दरमियान एक मुआहदा हुआ और उसके तहत तय पाया कि तमाम के तमाम लोगों को वहाँ से ला के पंजाब में आबाद किया जाएगा, और उसमें तकरीबन जो सर्वे किया गया राब्ता आलम इस्लामी के तहत 2,73,000 लोग कैंपों में रह गए थे। ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान की तरफ से 25 करोड़ रुपए दिए थे और इतनी ही रकम राब्ता आलम इस्लामी ने भी उस फंड में दिया था जिसका नाम राब्ता ट्रस्ट पड़ा था। फिर 80 के दहाई में जुनेजो साहब के दौर में एक सेनेट ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की कि उन सबको पाकिस्तान लाया जाएगा, और 4 सेनेटर्स ने, जिसमें कि साहिबजादा मंदोखेल, नूरजहां पानीज़ई, फसीह इकबाल और चौधरी सफदर, ये तमाम चारों सूबों से ये सेनेटर्स गए, उन कैंपों का दौरा करके आए और उन्होंने आके सेनेट में ये बात की कि वो पाकिस्तानी है और उनको पाकिस्तान आना चाहिए। उसके बाद से सूरत हाल ये है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं, बाज़ हुकूमतें आने के बाद वादे करती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 300 ख़ानदान को लेकर आए थे और 1992 में उन्होंने वज़ीर आज़म थे और खालिदा ज़िया वज़ीर आज़म थी। वहाँ इस्लामाबाद में एक जॉइंट कम्युनिके हुआ दोनों के दरमियान कि हम लाएंगे। अब पाकिस्तान उससे बिल्कुल इनकारी है और उनकी हालत जो वहाँ पे हो रही है, आए दिन उनके कैंपों में आग लगा दिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग जाएं, कभी उनको वो मुनहदिम कर दिया जाता है उनके कैंपों को ताकि वो वहाँ से निकल जाएं। तो आखिर ये लोग जाएं कहाँ? इनकी सूरत हाल ये अजीब हो रही है और ये जिम्मेदारी बिल्कुल पाकिस्तान पे होती है। इरशाद साहब ये बताइए, मैंने भी चूँकि वो कैंप देखे हुए, मैं बता सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बेचारों की जानवरों से बदतर ज़िंदगी है, बहुत बुरे हाल में वो रह रहे होते हैं। तो अब अगर उनके कैंप, जो लेटेस्ट खबर ये है कि उनको मुनज़्ज़म करने का कहा गया है कि उनको गिरा दिया जाए, तो ये आपके ज़हन में कुछ आता है कि मतलब फिर वाकई अगर नेशनलिटी इनके पास बांग्लादेश की नहीं होगी, पाकिस्तान इनको लेगा नहीं,
कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, तो इनका क्या किया जाए? मतलब हल क्या है? हल तो एक तो कम से कम ये सूरत हाल निकलती है कि बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जाए कि जो 71 के बाद पैदा होने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम नेशनलिटी वहाँ की मिल जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पहले के लोग हैं वो अब कम ही रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं। फिर उनके बारे में असल में रऊफ फैसला साहब देखिए 2008 में वहाँ पे कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था बांग्लादेश में कि जो सन 71 के बाद जो बच्चे कैंप में पैदा हुए हैं उनको वोट देने का राइट होगा। अच्छा, वोट देने का राइट जब होता है तो इवेंचुअली सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया और उस कार्ड से वो सिर्फ वोट दे सकते हैं। आप अभी देखिए, अभी जनवरी में ही जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, तो उन्होंने 3 मुतालबात रखे पाकिस्तान से। अखबारात में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पहला मुतालबा ये था कि पाकिस्तान अपोलॉजी करे बांग्लादेश से 71 के वाक़यात के बारे में। दूसरा मुतालबा था कि अपने स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को यहाँ से लेके चला जाए। और तीसरा ये था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मसला है उसको, इन तीनों को जब तक आप हल नहीं करेंगे तो हमारी आपके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। तो अभी तक उनका जो इंस्टांस है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं, उनको यहाँ से लेके जाइए। और पाकिस्तान जो है वो इनकार करता है, हालांकि ये सारे मुआहदे उसने कर रखे हैं। और ये अफसोसनाक बात है कि अभी ये देखिए इस सर्दी के ज़माने में उनको जो मुनहदिम किया गया है, और वहाँ के मेयर ने, मैंने कल उसकी टीवी का इंटरव्यू भी देखा कि उस मेयर ने कहा है कि अब हम कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं मानेंगे अगर वो स्टे ऑर्डर देते हैं, और हम इनको बेदखल करेंगे इसलिए कि ये 49 साल से इल्लीगली यहाँ पे रह रहे हैं। ये उनका स्टांस है। तो मेरा ख्याल है रऊफ साहब कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बांग्लादेश के साथ राब्ता करें, उनकी गवर्नमेंट से, उनसे बैठ के बात करें। खुद कराची में 20 लाख के करीब बंगाली रहते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। तो दोनों हुकूमतें मिलकर अगर कोई मसले का हल करें, जो मुनक़सिम ख़ानदान है वहाँ पे उनको एक्सेप्ट करे पाकिस्तान, और अगर बांग्लादेश को प्रॉब्लम है तो बांग्लादेश अगर उनको शहरियत देती है तो उनको बाइज्जत तौर पे रखे भी, तो उनका इंतज़ाम भी तो करे। तो ये अगर ये दोनों मुल्कों मिल के करें तो मसला ये बहुत आसानी से हल हो सकता है। और आप गैर मुल्की इमदाद भी ले सकते हैं, आपने मुआहदे किए हुए हैं और उसमें राब्ता आलम इस्लामी फ़रीक है, तो पैसे भी मौजूद हैं, फ़ंड भी मौजूद है। तो आखिर मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्यों पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता उनके लिए। बिहारियों से मुतल्लिक जब इक़दामात किए जा रहे थे और उनकी सेटलमेंट से मुतल्लिक तब ये बात भी सामने आई थी, और उस पर बिहारियों ने ये कंसर्न जाहिर किया था कि सेटलमेंट हो जाए लेकिन ठीक है, हमें दोबारा से कैंप्स में बंद ना कर दिया जाए, हमें दोबारा से उसी सूरत हाल में ना डाल दिया जाए। तो शाम साहब हमारे साथ हरमीत भी हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हरमीत। जरूर जी बिल्कुल, एहतिशाम साहब ने जिस तरह बात की कि 1980 तक पाकिस्तान का एक अहम किरदार था, बड़ी कोशिशें की गई इनके लिए, जो है एक इलाका पंजाब के कुछ इलाके भी मुस्तहक किए गए कि वहाँ पे इनकी रिहाइश भी होंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि एहतिशाम साहब कि वहाँ पे इनको ना सिर्फ जो ज़िंदगी वो तो अजीरन हो गई है, लेकिन इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी इनको कहा जाता है। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? सवाल तो ये भी बनता है कि अगर पाकिस्तान किरदार नहीं अदा करता, अभी तक हम इतने काबिल नहीं हुए, बल्कि मीडिया पे भी ये बात बड़ी कम मीडिया पे डिस्कस होती है इनके हवाले से। तो अब क्या करना होगा? पाकिस्तान की खामोशी इस वक्त, इस पाकिस्तान भी खामोश है, आलमी ताकतें जो है इंसानी हकूक़ की वो भी खामोश है, तो क्या बनेगा? ये कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान अब आगे क्या करना होगा इसके लिए। असल में बात, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, और भी कोई रोहिंग्या का मसला है या फिर आप सीरियन रिफ्यूजीज़ का मसला आता है, तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का भी रोल समझ में आता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इनके मामले में खामोश इसलिए है, हमने अप्रोच भी किया उनको, वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये चूँकि उसी सरज़मीन पे अभी मौजूद हैं जहाँ पे ये रह रहे थे, इसलिए ये रिफ्यूजी स्टेटस इनका बनता नहीं है। तो जहाँ तक सूरत हाल है कि क्या किया जाए उनके लिए, तो हमारी जो तंजीम है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे अमेरिका बेस्ड है, वो उनके लिए काम कर रही है कि कम से कम हम तो स्टेट्स एक्टर हैं नहीं, तो कम से कम हम उनको एज ए पाकिस्तानी, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस दें। हम उनके लिए कह रहे हैं 2 या 3 जनरेशन उनकी तालीम के बगैर रह गई, जाहिल रह गई। अगर उनको वहाँ स्टेटस मिल भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ी है, नहीं जानते।
تو ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. ہم نے پرائمری اسکول کھولی ہوئی ہے. ہم نے ان کو فری آف سارے اسکول سپلائز، بکس اور یہ یونیفارم سب ہم فری دیتے ہیں. ان کو پڑھاتے ہیں. ان کا ہائی اسکول ہم نے کھولا ہوا ہے. ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دے رہے ہیں. جو کچھ ہم سے بند پڑ رہا ہے، اور یقیناً بنگلہ دیش کی آپ گورنمنٹ کی ہم سے کوآپریٹ بھی تنظیم کرتی بہت ہے اچھا اور کام اس کر رہی سلسلے ہے، میں کوئی کپڑے دے رکاوٹیں رہی ہے.